Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the measure of consumer protection. Consumer protection के लिए क्या measures कर सकते हैं? Following 4 types of measures have been undertaken for consumer protection. Consumer protection के लिए 4 type के measures है. First is 3-tier, that is tribunal courts. अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया नेशनल लेवल पे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, नेशनल कंज्यूमर कमीशन हैज़ बीन सेटअप. उसके एक्ट के अंतर्गत एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को सेटअप किया गया. Similarly, the state consumer forum has been set up at the state level. ऐसे ही state level पे भी ऐसा state consumer forum को भी set किया. Under this commission, laws for consumer protection are framed. इसके अंदर, ये कमीशन के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लॉज को फ्रेम किया गया. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशन has created the structure of 3-tier court and framed norms for action of consumer forum or commission. Consumer Dispute Commission has created the structure of 3-tier court. ऐसे 3-tier court create किया Consumer Disputes Commission. First is District Forum. District Forum पे generally there is one court in every district which is a very important court. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा एक कोर्ट बनाया गया. वो क्या काम करेगी? It studies the complaints of consumers and give compensation to the consumer against loss. कंज्यूमर को जो लॉस हुआ है उसका कॉम्पेंशन के बारे में स्टडी करके कंज्यूमर की कंप्लेंट को स्टडी करेगा और उसको कॉम्पेंसेशन जो लॉस हुआ है उसको किस तरह से उस लॉस को भरपाई कर सके. Approximately 571 consumer district forums are working in our country. हमारे देश में ऐसे 571 consumer district forums काम कर रही है. In these courts presently claims for compensation up to rupees 20 lakh are filed after paying the decided fees. ये कोर्ट में 20 लाख तक का जो कंपेंसेशन का क्लेम होगा वो यहाँ केस फाइल किया जाएगा और उसके लिए जो डिसाइडेड फीस है वो डिसाइडेड फीस भरनी पड़ेगी. If the petitioner is not satisfied with the decision of district forum, जो भी petitioner है वो district forum के decision से satisfied नहीं होता है, he may file a complaint in the state commission within next 30 days. अगले 30 दिन के अंदर state commission में वो complaint फाइल कर सकता है. बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना है? ये इज टू पे आइदर 50% अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन क्लेम्स. जो भी कॉम्पेंसेशन अमाउंट का क्लेम किया है उसका 50% या 25,000 रुपया, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा वो उसको भरना पड़ेगा. Now second is state commission, state forum. Approximately 35 state forums are working presently. अंदाजित ऐसे 35 हमारे देश में state forums काम कर रही है. In these courts presently claims of compensation from 20 lakh to 1 crore are filed after paying the decided fees. अगेन यहाँ 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक का अमाउंट का जो क्लेम होगा वो जो पर्टिकुलर डिसाइडेड फीस है वो भर के यहाँ फाइल कर सकते हो.
यहाँ भी इफ द पिटिशनर इज नॉट satisfied with the decision of state commission, स्टेट कमीशन के डिसीजन से भी अगर पिटिशनर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, ही में फाइल ए कंप्लेंट इन द नेशनल कमीशन विद इन नेक्स्ट 30 days, although he has to pay either 50% of the compensation claim or rupees 35,000, whichever is less. पिटिशनर नेशनल कमीशन में अगला 30 दिन के अंदर वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है और वहाँ भी 50,000 कंपेंसेशन क्लेम का या 35,000 दो में से जो अमाउंट लेस होता है वो भरना पड़ेगा. नाउ थर्ड इज नेशनल कमीशन, नेशनल फोरम, नेशनल लेवल पे वहाँ compensation claim above ₹1 crore could be made here by paying the decided fees. यहाँ जो है वो 1 करोड़ के ऊपर वाला अमाउंट का क्लेम के लिए फाइल कर सकते हो. दिस कमीशन इज अ बेंच ऑफ 5 members. ये जो कमीशन जो है उसमें 5 मेंबरों की कमिटी होती है. State Commission and National Commission should give the decision as early as possible or within 90 days of filing the case. केस जब भी फाइल किया जाता है, दर्ज किया जाता है, उसके अंदर ये स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन को अपना डिसीजन जो है वो 90 दिन के अंदर देना है. If the petitioner is not satisfied with the decision of National Commission, he may file a case in Supreme Court within next 30 days. Again, National Commission का डिसीजन से पिटिशनर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो अगले 30 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है. बट बिफोर अपीलिंग इट इज कंपल्सरी to deposit 50% of the compensation amount or 50,000, whichever is less. सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले उसको 50% का कॉम्पेंसेशन अमाउंट का या 50,000 जो भी कम है वो भरना पड़ेगा. If the person does not comply the orders given by any of court, he could be given punishment or penalty or both of them. अगर जो भी पर्सन कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको कंप्लाई नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा तो ही कुड बी गिवन पनिशमेंट और पेनल्टी. पनिशमेंट भी हो सकती है या पेनल्टी, दंड भरना पड़ेगा या फिर दोनों हो सकता है. People below poverty line, senior citizens and handicaps are exempted from paying fee under certain conditions. ये कमीशन में अपने कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल है, जो सीनियर सिटीजन है या जो हैंडीकैप्ड है, उनको सर्टन कंडीशंस पे जो फीस भरनी है उसको एग्जम्प्टेड है, उसको माफ किया जाता है, उसको फीस नहीं भरनी पड़ेगी. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री सर्विस अंडर डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस गाइडेंस ऑफ लीगल एड एंड एडवोकेट. ऐसे लोगों के लिए फ्री सर्विस है अंडर डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस में, उसको गाइडेंस मिलेगा लीगल एड के बारे में और एडवोकेट भी मिलेगा. तो ये फर्स्ट ways हुआ. Now second way is consumer society, consumer protection council. As per this act, government recognized consumer societies have been established at तालुका, district, state और national level. गवर्नमेंट जो है वो तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कंज्यूमर सोसाइटीज को एस्टैब्लिश करती है. The consumer societies or councils are non-political, non-commercial, voluntary organization set up by consumers. ये जो consumer societies जो है वो नॉन पॉलिटिकल होगा, नॉन कमर्शियल होगा, वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका सेटअप कंज्यूमर खुद करते हैं
और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दिस कंज्यूमर सोसाइटी इज टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड एनकरेज देम टू हेल्प government to frame policies or to protect from time to time गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज फ्रेम करती है उसको एनकरेज करना, उसका कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयर करना, ये कंज्यूमर सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है. It also gives suggestions to the government regarding need to change legislative provisions. Legislative provisions में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत है तो वो सजेशंस भी देते हैं. These consumer societies provide consumer education through consumer awareness program. Consumer awareness program के ज़रिए consumer society जो है वो consumer को educate करेगा, which provides guidance or main objects like rights of consumers, duties, exploitation in different ways and how to be saved from exploitation. कंज्यूमर की क्या ड्यूटीज़ है, कंज्यूमर की क्या राइट्स है और कंज्यूमर किस तरीके से एक्सप्लॉइट होता है और उस एक्सप्लॉइटेशन से कैसे बच सकता है, इसके बारे में गाइडेंस देगा. These consumer societies or organizations publish monthly, bi-monthly magazines or periodicals like Grahak Suraksha, Insight, The Consumer, ग्राहक मंच. ये सारे मैगजीन्स के ज़रिए जो मंथली होगा या बाई मंथली होगा या मैगजीन्स होगा जो पीरियोडिकली होगा, इसके ज़रिए, ये मैगजीन्स के ज़रिए ट्राई टू ब्रिंग अवेयरनेस, कंज्यूमर में अवेयरनेस लाने की कोशिश करना. दे आर हेल्पफुल इन एलिमिनेशन ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को कैसे रिमूव किया जाए उसमें हेल्पफुल होगा. थर्ड इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Under this system, essential commodities of good quality are provided in fixed quantity at subsidized rate to the poor at regular interval from fair price shop. फेयर प्राइस शॉप की दुकान, जो हम रेशन कार्ड की दुकान बोलते हैं, रेशन शॉप, वहाँ पुअर पीपल को अच्छी क्वालिटी का रिजनेबल प्राइस में फिक्स क्वांटिटी में एसेंशियल कमोडिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. द पुअर कंज्यूमर इज सेव्ड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन इन द ओपन मार्केट फ्रॉम वेयर दे हैव टू परचेज गुड्स एट हाई रेट. इसका मेन जो पर्पस है वो पुअर पीपल जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, पुअर कंज्यूमर्स का, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको ज़्यादा रेट में परचेज करना पड़ेगा, वो ना करना पड़े, क्वालिटी भी जो है लो ना मिले एंड वेट भी लेस ना हो. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल्स करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर. मेन जो पर्पस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सिस्टम का, जो ट्रेडर का करप्शन ना कर पाए उसको कंट्रोल करना है, ताकि जो भी पुअर कंज्यूमर जो है उसको मार्केट रेट से कम दाम में अच्छी क्वालिटी में बराबर वेट से क्वांटिटी में एसेंशियल कमोडिटीज मिले. एंड फोर्थ इज सिस्टम सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स. For health and safety of consumers, government has set up many legal institutions which performs the task of checking the quality, quantity and purity of produce goods and certifies them. ये जो तरीका है जिसमें जो वेट एंड मेजर्स जो है उसको सर्टिफाई करता है, जो तोल माप है, और गुड्स का प्योरिटी को सर्टिफाइड करता है कि इसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो प्योरिटी है, वो सारा जो है ये लीगली सरकार जो है उसको चेकिंग करेगी. जो भी गुड्स प्रोड्यूस होगा या मार्केट में गुड्स बेचा जाएगा उसकी
क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी को सर्टिफाई करना है। तो यहाँ हियर वी स्टॉप टुडेस लेक्चर, विल कंटिन्यू। जो सर्टिफाइड है, जो गुड्स के लिए पर्टिकुलर क्या मार्का है, जो हम देखेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।